Okay, so on the last turn, we had we were discussing about serializability. In fact, we had discussed about the conflict serializability and view serializability. So let us now discuss a little bit more about view serializability, a little bit about the basic relationship between both of them. So I had given you an example on the last turn. Actually मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था व्यू सीरियलाइजेबिलिटी का. तो एक एग्जाम्पल लेके आज फिर से चेक करते हैं व्यू और कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी के बारे में, लिटिल बिट अबाउट देम, एंड देन वी विल मूव forward to the database recovery basically. So recoverability we've already seen. So what I'm going to do is I'm going to take an example today and show you how to check view serializability and the difference between conflict serializability and view serializability. So this is the precedence graph that we have already discussed. So what I'm going to do is I'm going to take an example. So let me insert a new slide, right? And I'll start from here. So basically, what I had discussed so far was that the total schedules that we might have in database can either be consistent or they can be inconsistent. So let me draw something, a Venn diagram to show this. So this is like my inconsistent schedules. The total schedules that would be constituted out of given transactions can either be inconsistent. Some of the schedules that we have made can be consistent. So for example, let me say I have T1 to T5. I have, let's say, 5 transactions. So if I produce the interleaving, there will be 5 factorial total schedules which could be made out of these transactions, taken all 5 together, right? So out of these, the schedules that I make, for example, one may be T1, T3, T2, T4, T5, right? This is one example. Similarly, there will be 5 factorial schedules. Out of all of these schedules, there will be some schedules which will be consistent, not serial schedules. I am speaking about interleavings, right? So interleavings, ये तो serial schedule की बात हो गई. Serial schedule तो हमेशा consistent होंगे, लेकिन these T1 to T5 would have some reads and some writes, some write operations. It may have some read, it may have some write. So each transaction will have certain number of reads and writes. And if we interleave the operations of them, then I can get, so many number of interleavings. जो number of interleavings है, अगर T1 के अंदर let's say कि 7 operations हैं read write के, और T2 के अंदर let's say 8 operations हैं, तो टोटल मिला के 56, 7 into 8, 56 combination of operations हैं, जिनको कि अगर मैं arrange करूंगी तो there would be a lot, right? So for example, permutation combinations अगर मैं find out करूंगी तो there would be number of interleavings that are available for 2 transactions. और अगर मैं 5 ट्रांजेक्शन की बात कर रही हूँ तो नंबर ऑफ इंटरलीविंग्स बहुत सारे होंगे, तो बहुत सारे शेड्यूल्स बन सकते हैं. So out of these schedules, some will be inconsistent, let's say, and out of all the schedules, some will be consistent schedules. कल हमने पढ़ा कि इनमें से कुछ schedules जो हैं वो conflict serializable होंगे, consistent हैं. तो क्या because if a schedule is conflict serializable, that means it will always be consistent. But can I say if a schedule is not conflict serializable, it will not be consistent? No, I cannot say, because there can be some schedules which are consistent and still not conflict serializable. So we defined a liberal form of serializability and we called it view serializability, right? So there would be some schedules which would be conflict serializable, right? So every conflict serializable schedule would be view serializable, but not all view serializable schedule would be conflict serializable. So basically this is the basic Venn diagram of that. So how do we check how when somebody asks us whether a particular given schedule is view serializable or not, तो हमको क्या करना चाहिए? देखो, पहली चीज तो ये समझो
कि व्यू सीरियलाइजेबिलिटी जो है वो अपने आप में एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है. दैट मीन्स पॉलिनोमियल टाइम में तो मैं इसे सॉल्व ही नहीं कर सकती. दिस इज एन एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम. व्हाई? क्योंकि अगर आपने मुझे कोई शेड्यूल एस दिया, suppose I have 3 transaction T1, T2, T3. So all अगर आपने मुझे S दिया और कहा कि इसकी is it view serializable, तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा? I will have to check the serializability against all possible combination 1 2 3 1 3 2 2 3 1 2 1 3 3 1 2 3 2 1. This is the like all serial schedules which can be formed out of these 3 transactions. T1 executing first, T2 executing next, T3 executing next और T1. So I will have to check. अगर मैं इनको बोलूं S1 से लेके S6 तक, so I will have to check view serializability of S with S1. If it fails, then I will have to check view serializability with S2. If it fails, then I have to check view serializability with S3 and till S6 I have to check. So basically अगर 3 ट्रांजेक्शन ही है तो मुझे 6 सीरियल शेड्यूल के अगेंस्ट एस को चेक करना पड़ेगा, राइट? अब प्रॉब्लम क्या है कि नॉर्मल अगर मेरा नॉर्मल डेटाबेस भी है तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एटलीस्ट 1000 ट्रांजेक्शन तो एग्जीक्यूट हो ही रहे होंगे. So 1000 factorial is the total combination of serial schedules that I would to have to check against S. So try to understand that view serializability is more of a concept than an implementation, right? तो ये concept है, एक logical concept है, but it is not implemented ever in the database, and why I have just explained. Now let me just give you a brief overview about how conflict serializability and view serializability is related to each other. So what happens is, see, when somebody says check whether S is view serializable, अगर किसी ने पूछा आपसे कि S view serializable है कि नहीं है, तो सबसे आसान होता है check if S is conflict serializable. पहला पार्ट यही करना ही यही है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी इजी है चेक करना. मैंने आपको पहले भी बताया, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी चेक करने के लिए आप प्रेसिडेंस ग्राफ बना लीजिए. अगर उसके अंदर लूप है तो आप बोल दीजिए कि नहीं, ये तो नहीं है, ये तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं है, राइट? सो द इजीएस्ट वे इज चेक कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी. मैंने आपको कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी प्रेसिडेंस ग्राफ बना के सिखाई थी. अब अगर कोई, सीधी सी बात है, अगर वो शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल आ गया, yes it is conflict, so S is view serializable. डायरेक्ट लिखिए कि वो view serializable है क्योंकि वो conflict serializable है, and each conflict serializable schedule would be view serializable. अगर ऐसा नहीं है कि वो जो शेड्यूल है वो conflict serializable नहीं है, इस केस में check if S has blind rights. सबसे पहले चेक करो कि एस की ब्लाइंड राइट्स हैं क्या. ब्लाइंड राइट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं. अगर कोई ट्रांजैक्शन बिना रीड किए किसी डेटा आइटम को राइट करता है तो वो ब्लाइंड राइट है. फॉर एग्जांपल, दिस इज नॉट आर एक्स डब्ल्यू एक्स अगर है T2 में, तो T2 में डब्ल्यू एक्स ब्लाइंड राइट है क्या? नहीं है. क्यों? क्योंकि पहले उसने रीड किया फिर राइट किया, जबकि T1 ने डायरेक्ट राइट किया. सो हम क्या करेंगे? वी विल चेक फॉर ब्लाइंड राइट्स. सो इफ एस हैज ब्लाइंड राइट्स, अगर आपको पता, आपने देखा ब्लाइंड राइट्स हैं, नहीं है, देन S इज नॉट व्यू सीरियलाइजेबल. डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, क्योंकि व्यू सीरियलाइजेबिलिटी की कंडीशन है कि ब्लाइंड राइट्स ही होते हैं, उसके अंदर कम से कम एक ब्लाइंड राइट होना कंपलसरी है. सो अगर आपको ब्लाइंड राइट्स नहीं मिल रहे हैं इसमें, डायरेक्ट लिखिए कि नहीं, S व्यू सीरियलाइजेबल नहीं है क्योंकि उसके अंदर ब्लाइंड राइट्स नहीं है. अब सपोज आपको ब्लाइंड राइट मिल गए, yes there are some blind rights in S, then you will perform a test, right? ये टेस्ट मैं आपको कल बता चुकी हूँ, फिर से उसको एक बार और उसके बारे में बात करेंगे. ये देखो, यहाँ पे मैंने 3 चीजें बताई थी आपको. इनिशियल रीड्स मस्ट बी सेम, फाइनल राइट्स मस्ट बी सेम एंड इंटरमीडिएट रीड्स शुड बी सेम. चलो देख लें एक बार एग्जांपल, किस तरीके से हम उसको देख सकते हैं. तो लेट्स सी. So what we are going to test in the 2 transaction is, first we are checking initial reads must be same, right? Second,
फाइनल राइट मस्ट बी सेम ऑन ऑल डेटा आइटम्स, जितने डेटा आइटम्स ट्रांजेक्शन यूज कर रहे हैं. एंड थर्ड वी विल चेक फॉर इंटरमीडिएट राइट्स. सो लेट मी टेक एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. सो इंटरमीडिएट रीड्स चेक करने हैं हमको, है ना. एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से देख लेते हैं. कल जो आपको एग्जाम्पल मैंने बताया था वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी थी. नाउ लेट मी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल. उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं. Let me add one more slide. Let us keep this and new slide add करते हैं. Okay. So let me take the example that we had taken earlier. S was T1 and T2 के बीच में, जिसमें ये सबसे पहला वाला था, उसी से करते हैं. इजी पड़ेगा आपको समझने के लिए, बहुत इजी है, इसलिए let me do it. And this was RY, WY, and then this RY and WY, right? So what I'm going to do is I'm going to write a serial schedule S dash, and S dash is T1 followed, T1 के बाद में T2, T1 followed by T2, right? So let me write them. So T1 would complete first, so it will do all its operations first, and then T2 would do, right? सो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी तो मैं प्रूव कर ही सकती हूँ बहुत इजीली कि ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, बस आपको एग्जांपल देने के लिए. अब मुझे ये चेक करना है, इज एस व्यू सीरियलाइजेबल. ठीक, तो जब ये क्वेश्चन आया तो मैंने एक एस डैश एक ले लिया कि T1 के बाद T1 एग्जीक्यूट होता है और T2 एग्जीक्यूट होता है. अगर देखो, अब ध्यान से सुनो कि S को मेरे को S डैश के अगेंस्ट चेक करना पड़ेगा व्यू सीरियलाइजेबिलिटी के लिए. अगर ये नहीं हुआ व्यू सीरियलाइजेबल तो फिर मुझे S को S डबल डैश, जो कि T2 फॉलोड बाय T1 है सीरियल शेड्यूल, उसके अगेंस्ट भी चेक करना पड़ेगा, राइट? अगर आप लकी हैं तो पहली बार में आपको व्यू सीरियलाइजेबिलिटी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है सब चेक करने पड़ते हैं, इसीलिए एक एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है. तो चलो मैं अभी S और S डैश के बीच में करती हूँ. So मेरा टेस्ट जो है, what is our test for view serializability? The first says that transaction T1 and T2, पहला क्या है मेरा, इनिशियल रीड्स चेक करना है. चलो अब मेरे पास डेटा आइटम्स कौन कौन से हैं, X और Y हैं. मैं ये चेक करूंगी कि ट्रांजेक्शन T1 में किसने करा और ट्रांजेक्शन T2 में किसने किया, राइट? सो T1 में इनिशियल रीड X का किसने किया, सबसे पहले किसने रीड किया, T1 ने रीड किया, राइट? सो सॉरी, यहाँ S1 लिखती हूँ, ये S1 शेड्यूल में, S शेड्यूल में, एंड लेट मी यूज एन इरेजर. ओके, सो S1 S में और S डैश में, ठीक. तो S शेड्यूल में इनिशियल रीड X का किसने किया, T1 ने किया. ऐसे ही इनिशियल रीड Y का किसने किया, T1 ने किया. अब मुझे चेक करना है S डैश में, S डैश में इनिशियल रीड X का किसने किया, T1 ने. इनिशियल रीड Y का किसने किया, T1 ने. सो दिस मैचेस in both the schedules. The initial reads are same. Now second test was final write. Let us check final write. So X और Y के final writes शेड्यूल S में, शेड्यूल S डैश में किसने किए. ओके, सो X का फाइनल राइट अगर मैं देखूं तो WX ये फाइनल राइट है. इसके बाद किसी ने X को राइट नहीं किया शेड्यूल S में. सो फाइनल राइट हैज बीन डन बाय, इन S द फाइनल राइट हैज बीन डन बाय T2, राइट? सिमिलरली Y का फाइनल राइट किसने किया, ये रहा. Y का फाइनल राइट भी S के अंदर किसने किया है, T2 ने किया है. अब मैं इस वाले में चेक करूंगी, इसमें फाइनल राइट किसने किया, ये रहा फाइनल राइट. इसके बाद किसी ने नहीं राइट किया ना, T2 ने किया. S डैश में फाइनल Y का भी फाइनल राइट किसने किया, T2 ने किया. सो दिस आल्सो मैचेस इन बोथ द ट्रांजैक्शन. The initial reads and the final writes have been done by the same transaction. अब बात करते हैं इंटरमीडिएट रीड्स की. अब इंटरमीडिएट रीड की बात करते हैं कि इंटरमीडिएट रीड किसने किया. देखो यहाँ RX जो है, ये जो RX है ये एक इंटरमीडिएट रीड है, क्योंकि ये तो इनिशियल रीड है. इसके बाद X को किसने रीड किया, T2 ने रीड किया.
अब मुझे ये देखना है कि एस ट्रांजेक्शन में इंटरमीडिएट रीड किस ट्रांजेक्शन ने किसका किया, तो इस केस में T1 की वैल्यू जो राइट हुई वो T2 ने रीड की, राइट। सो इंटरमीडिएट रीड्स की बात करते हैं। इंटरमीडिएट रीड्स करने के लिए मेरे पास कौन कौन से इंटरमीडिएट रीड्स है, पहले मैं ये देख ले, आइडेंटिफाई कर लूं। एक तो ये इंटरमीडिएट रीड है ना, और एक ये इंटरमीडिएट रीड है। सो RX एंड RY ये इंटरमीडिएट रीड्स है मेरे दोनों, ठीक है। सो इंटरमीडिएट रीड्स के लिए मैं एक टेबल बना देती हूँ, S और S डैश, एंड व्हाट आर माय इंटरमीडिएट रीड्स। यहाँ पे मेरा इंटरमीडिएट रीड है RX एंड RY, दो इंटरमीडिएट रीड्स हैं। चलो S में देखते हैं कि जो ये इंटरमीडिएट रीड हुआ ये किसकी वैल्यू पढ़ रहा है, T2 रीड्स द वैल्यू ऑफ T1, राइट। सो T2 रीड्स T1, ठीक। RY के केस में देखते हैं, RY के केस में भी T1 ने उसे राइट किया, फिर T2 ने उसे पढ़ा। सो अगेन T2 रीड्स T1 इंटरमीडिएट रीड के लिए। अब हम देखेंगे इस ट्रांजेक्शन S डैश के अंदर। नाउ S डैश के अंदर इंटरमीडिएट रीड्स कौन से हैं, एक ये इंटरमीडिएट रीड है, नहीं ये तो इनिशियल रीड है ना, इनिशियल रीड है। सो ये इंटरमीडिएट रीड है और ये इंटरमीडिएट रीड है, ठीक। RX ने जो वैल्यू रीड करी X की वो किसने लिखी, T1 ने लिखी। सो अगेन T2 रीड्स T1 एंड RY जो है, ये देखो RY ये इनिशियल रीड है, ये इंटरमीडिएट रीड है। सो इंटरमीडिएट रीड इसने किसकी वैल्यू लिखी हुई पड़ी, T1 की लिखी हुई वैल्यू पड़ी। सो अगेन T2 रीड्स T1। All of these three conditions have been fulfilled. Therefore, S is view. Therefore, S is view equivalent to S dash, and we have proved that S is view serializable, right? So this is what view serializability is all about. I have also explained how you need to go through this. So you check whether a particular schedule is conflict serializable or not. If it is conflict serializable, then view serializable तो होगा ही होगा, क्योंकि इस ग्राफ से ही आपको पता चल रहा है। If it is conflict serializable, वो view serializable के अंदर तो आएगा ही आएगा। See, again, can I say if a schedule is not view serializable, then it will be inconsistent? No, I cannot say that, because there can be a schedule S which is consistent but not view serializable. ये चीजें याद रखना। ये ग्राफ अगर तुम एक वेन डायग्राम जो है उसको थोड़ा दिमाग में बिठा के रखोगे तो ये it will be very easy for you to remember that. So anyhow, this is all about equivalence, the view equivalence and the conflict serializability. मैंने आपको पूरा explain कर दिया, right? So let's now give me I will give you a brief introduction about transaction support in SQL. Once we complete with transaction support in SQL, we'll move towards recovery, right? Logging के बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको बता चुकी हूँ, अब मैं आपको logging के बारे में बाकी चीजें बताऊंगी. Do remember that each single SQL statement is always considered to be atomic, right? Either the statement completes execution without error or it fails and leaves the database unchanged. So एक जो आप SQL लिख रहे हैं ना, select from where, ये पूरा atomic है। इसके जितने ऑपरेशंस हैं, हो सकता है where के आगे आपने एक और अंदर इन करके क्वेरी लिख दी हो, तो भी ये जो ऑपरेशन है ये ऑपरेशंस atomic हैं, each single SQL. So this is an atomic operation, this would be an atomic operation, this would be an atomic operation, and finally either ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी SQL स्क्रिप्ट या SQL स्टेटमेंट आधा एग्जीक्यूट हो जाए। SQL में there is no explicit begin transaction statement, ये ऑलरेडी इम्प्लिसिटली होता है। जैसे ही आप किसी भी लैंग्वेज में एम्बेडेड या कोई SQL स्क्रिप्ट में वो एनकाउंटर करता है SQL स्टेटमेंट. So there is no explicit begin, but the transaction must have an explicit end. So when you write a transaction in SQL, either you should write a commit or there has to be a rollback. तो explicit end statement होना जरूरी है, explicit begin होना कभी भी जरूरी नहीं है, right? Now, whatever characteristics you want to have for a transaction, हमने asset properties पढ़ी थी,
तो आप SQL2 के अंदर यू कैन यूज अ इंस्ट्रक्शन सेट ट्रांजेक्शन टू राइट इट. सो डिफॉल्ट जो होता है वो रीड राइट होता है, लेकिन until isolation level read uncommitted is specified, हम नॉर्मली स्पेसिफाई करते हैं कि जो एक्सेस मोड है वो क्या रहेगा ट्रांजेक्शन का. Normally the diagnostic size is taken to be n, which indicates how many number of conditions that can be held simultaneously in the diagnostic area. So set transaction statement में isolation level क्या होता है, अब इसके बारे में बात करते हैं. नॉर्मली हम डिफॉल्ट सीरियलाइजेबल रखते हैं. जो कल मैंने एक बात बताई थी आपको कि सीरियलाइजेबिलिटी एक्चुअल वर्ल्ड में कैसे रियलाइज होती है, दिस आई हैड स्पोकन अबाउट दैट. कि इन एक्चुअल वर्ल्ड द सीरियलाइजेबिलिटी is normally observed at the transaction, at the database transaction level. They will always be observed at serializable. With serializable सारे interleaved transaction जो हमारे notion of serializability है, conflict serializability है, उसको follow करते हैं. However, जो यूजर इंटरेक्शन वाले ट्रांजेक्शन होते हैं दे विल एग्जीक्यूट एट अ लोअर लेवल. तो सीरियलाइजेबिलिटी वायलेट हो सकती है. वो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि अमेजोन में आपने देखा कि वो लास्ट आइटम बचा हुआ है और जब तक आप ट्रांजेक्शन बैंकिंग ट्रांजेक्शन करने गए तब तक वो दिखाने लग गया, एरर दिखाने लग गया कि वो 0 हो गया है, राइट. सो व्हाट आर द लेवल्स? रीड अनकमिटेड इज द लोएस्ट लेवल, देन रीड कमिटेड, देन रिपीटेबल रीड एंड देन सीरियलाइजेबल. नाउ इन चारों में फर्क क्या है? इन चारों में फर्क ये है कि ये अलग अलग चीजें लोअर आइसोलेशन लेवल जो है, जो 4 प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी थी, डर्टी रीड्स, अनरिपीटेबल रीड्स, वो सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो उनको अलाउ करने लग जाता है. वो कहता है कि ठीक है मैं आई विल अलाउ दिस, और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो ट्रांजेक्शन वुड रोल बैक टू द इनिशियल लेवल. सो बेसिकली ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखते हुए वो आइसोलेशन लेवल को बढ़ाता नहीं है. देखो आइसोलेशन लेवल जितना ज्यादा बढ़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आइसोलेशन लेवल सीरियलाइजेबल कर लिया, तो मुझे फिर चेक करना पड़ेगा उसको कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी के लिए, एंड इट विल टेक टाइम. सो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स जो है लोअर आइसोलेशन लेवल रखने की वो ये है कि डर्टी रीड्स अलाउ कर देते हैं हम, जिसमें रीडिंग अ वैल्यू दैट वाज रिटन बाय ट्रांजैक्शन व्हिच फेल. सो डर्टी रीड्स हो सकते हैं, क्योंकि अगर मैं बोल देती हूँ कि नहीं मुझे रिकवरेबल शेड्यूल ही चाहिए, तो उसमें तो T1 ने अगर कोई वैल्यू रीड राइट की है जो T2 रीड करना चाहता है तो तभी कर सकता है जब तक ट्रांजैक्शन T1 कमिट नहीं करे. अगर वो कमिटेड वैल्यू ही रीड कर रहा है तभी वो रिकवर हो सकता है, या फिर वो तब तक वेट करे कमिट करने का जब तक कि T1 कमिट नहीं हो जाता, राइट. तो मैंने आपको स्ट्रिक्ट शेड्यूल्स, रिकवरेबल शेड्यूल्स तीनों पढ़ाए हैं, राइट. सो वी विल हैव टू सी कि हम किस तरीके से इस प्रॉब्लम के साथ डील करेंगे. देन आई कैन हैव नॉन रिपीटेबल रीड्स. If you allow one transaction to write a new value between multiple reads, so T1 transaction has read the value of RX twice, और इसके बीच में T2 आ जाता है और T2 आके वैल्यू को राइट एक्स कर जाता है, तो यहाँ उसको वैल्यू लेट्स से A मिलती है और यहाँ आके उसकी वैल्यू चेंज होकर उसको B मिलती है, अनरिपीटेबल रीड्स. दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन जो अमेजोन वाला मैंने प्रॉब्लम बताया, या फिर आप एयरलाइन में एक टिकट बुक करने गए, वो लास्ट सीट थी, जब तक आपने बैंकिंग ट्रांजेक्शन किया तब तक वो सीट गायब हो गई. ये जो होता है, ये जो प्रॉब्लम है, ये अनरिपीटेबल रीड है, बिकॉज जब उसने वैल्यू रीड करी सीट की तो उसको S = 1 मिला, लेकिन जब तक उसने दोबारा से वैल्यू को राइट करने के लिए रीड किया दोबारा से, तो RX द वैल्यू ऑफ सीट बिकम 0, राइट. सो अगर मैं लोअर आइसोलेशन लेवल रखूंगी ट्रांजेक्शंस में तो मुझे इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, राइट, बिकॉज दे अलाउ. देखो रिपीटेबल रीड्स जहां पे है, ये रिपीटेबल रीड्स, सो दिस इज 0 1 2 3. सो आइसोलेशन लेवल इज इक्वल टू 3 मीन सीरियलाइजेबल. सो आइसोलेशन लेवल 0 या आइसोलेशन लेवल 1 रखने से, रीड कमिटेड रखने से मुझे रिकवरेबिलिटी तो हो जाएगी, लेकिन हो सकता है कि मुझे अनरिपीटेबल रीड की प्रॉब्लम आए. पर क्योंकि हम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते चीजों के साथ, अगर हम बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएंगे कि आइसोलेशन लेवल हर ट्रांजैक्शन के लिए सीरियलाइजेबल है, तो रिस्पांस टाइम पुअर हो जाएगा डेटाबेस का, राइट. एंड दैट इज द रीजन दैट वी कीप लोअर आइसोलेशन लेवल फॉर द ट्रांजैक्शंस where there is user interaction involved. So this is about the transaction support. Now another problem, potential problem with lower isolation level is phantoms. Now what is phantoms? New rows being read using the same read with condition. So होता क्या है कि एक ट्रांजेक्शन जो है उसने कुछ रीड करी, कुछ it has read a set of rows from a table,
है ना, परहैप्स कोई जो भी कंडीशन थी उससे उसने कुछ जैसे कि फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय टेबल के ऊपर आपने एक क्वेरी लिखी जिससे उसने 4 रोज को फेच कर लिया। नाउ जब जब इसने ये फेच कर लिया तो इसके साथ इंटरलीव एक T2 ट्रांजेक्शन चल रहा था, उसने एक नई रो इंसर्ट कर दी। अब ये जो इंसर्ट करी उसने रो आर डैश, एक्चुअली आर डैश जो रो थी वो भी इस T1 की वेयर कंडीशन को फॉलो करती थी। तो अब क्या होगा कि अगर मैंने T1 ट्रांजेक्शन को फिर से रिपीट किया तो T1 will see a new row that previously did not exist. This is called a phantom problem. So अगर लोअर आइसोलेशन लेवल है तो ये फैंटम, वी विल आल्सो कम अक्रॉस फैंटम प्रॉब्लम, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि T1 ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर रहा था और बाई चांस फेल हो गया, ठीक, तब तक T2 आया, उसने उसमें नई रो इंसर्ट कर दी। अब T1 जब रीडू करा T1 ने, तो जैसे ही रीडू करेगा उसको एक नई रो मिलने लग जाएगी। अब वो जो नई रो मिलने लग गई वो एक फैंटम है, राइट। सो दिस इज अनदर प्रॉब्लम विद लोअर आइसोलेशन लेवल्स, especially 0 and 1. So this is a sample SQL transaction, right? So exact SQL statement starts executing SQL, और अगर कोई एरर हो रही है डेटाबेस कनेक्टिविटी में तो दिस विल गो टू अनडू, राइट, दिस इज अनडू रोल बैकिंग के लिए, ठीक। सो सेट ट्रांजेक्शन में पहला लेवल रीड राइट जो कि डिफॉल्ट है, अगर आप नहीं भी सेट करोगे तो डिफॉल्ट में रीड राइट रहता है ट्रांजेक्शन। डायग्नोस्टिक साइज 5, आइसोलेशन लेवल सीरियलाइजेबल। देन एग्जैक्ट एसक्यूएल इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय दीज वैल्यूज, अपडेट किया, एग्जैक्ट एसक्यूएल कमिट एंड गो टू द एंड, राइट। सो अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये सीधे यहां आ जाएगा, अगर नहीं हुआ तो ये रोल बैक करेगा। So this is a simple sample SQL transaction. Obviously you don't write it like this. आप लोग इस तरीके से लिखते नहीं है क्योंकि implicitly begin SQL जो है वो आपको लिखना नहीं पड़ता। Now this is the type of violation which occurs in each of these levels. So this is isolation level 0, 1, 2 and 3. हम 3 को serializable बोलते हैं। इसमें ना तो डर्टी रीड्स पॉसिबल है, ना नॉन रिपीटेबल रीड्स वो होते हैं, ना फैंटम प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन अगर हम रीड अनकमिटेड करते हैं तो ये तीनों तरह की प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं, पॉसिबल वायलेशन होता है। रीड कमिटेड करते हैं तो ऑब्वियसली डर्टी रीड्स नहीं होंगे बिकॉज यू आर ओनली रीडिंग कमिटेड वैल्यूज ऑफ द रीड, राइट। किसी भी डेटा वैल्यू को आप तभी रीड करते हो जब जिस ट्रांजेक्शन ने उसे राइट किया वो कमिट हो गया है, तो आपको डर्टी रीड की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन नॉन रिपीटेबल रीड्स और फैंटम प्रॉब्लम्स होती हैं, जबकि जब आप रिपीटेबल रीड आइसोलेशन लेवल पे रखते हो तो आपको नॉन रिपीटेबल रीड्स का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। सो क्योंकि यहाँ मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इन चीजों को डिस्कस नहीं कर सकती, बट फिर भी मैंने आपको सारे एग्जांपल्स बताए हैं कि आइसोलेशन लेवल में व्हाट आर द पॉसिबल वायलेशंस ऑफ सीरियलाइजेबिलिटी। नाउ दिस इज ऑल अबाउट सीरियलाइजेबिलिटी। सीरियलाइजेबिलिटी के बारे में मैं जो जो आपको बताना चाहती थी वो सब मैंने आपको बता दिया। Now what I'm going to do is I'm going to start with the next part of our syllabi, which is रिकवरी। अब कुछ थोड़ा सा रिकवरी के बारे में। यस अभिमन्यु, डू यू हैव अ क्वेश्चन अभिमन्यु? No ma'am, by mistake. Okay, so let us move to the next part of the slides. Actually मैंने उनको ओपन करके रखा था, पता नहीं कैसे क्लोज कर दिया उसको, कोई बात नहीं। Okay, so now what I'm going to move towards is the concurrency control. अच्छा, अब हमने जो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोगों ने जो पढ़ा था, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, जिसमें मेनली जो चीज पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी क्रिटिकल सेक्शन, इफ यू रिमेंबर, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं वो कम्युनिकेट कैसे करें, और सेकेंड थिंग वाज इफ द प्रोसेसेस वर शेयरिंग रिसोर्सेज हाउ डू वी इंटरलीव देम, राइट। And almost analogous thing we would be discussing today, which is concurrency control. Now why do we want to do concurrency control? Because we want to enforce isolation. हमारे लिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन बहुत जरूरी है कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रांजेक्शंस के बीच में। सो अगर दो ट्रांजेक्शंस T1 एंड T2 हैं एंड दे आर शेयरिंग डेटा आइटम्स X एंड Y,
I need to ensure that they use or they write it in a way that race conditions do not occur, right? So to preserve the database consistency, through consistency, preserving execution of transaction, we need concurrency control. और obviously कॉन्फ्लिक्ट्स कब होते हैं, जब एटलीस्ट एक राइट ऑपरेशन होता है दोनों के बीच में, यानी कि या तो T1 रीड करे T2 का राइट, या T2 रीड करे T1 का राइट, या T1 और T2 दोनों राइट करें, राइट? सो कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट में कॉन्फ्लिक्ट कब होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और बेसिकली ये होता है कि जब T1 और T2 के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो कॉन्करेंसी कंट्रोल डिसाइड करता है कि T1 और T2 में से कौन फाइनल वैल्यू को राइट करेगा और दूसरा ट्रांजैक्शन क्या करेगा, वेट करेगा या रोल बैक करेगा, राइट? सो दिस इज द बेसिक कॉन्करेंसी कंट्रोल। जो सबसे कॉमन कॉन्करेंसी कंट्रोल मेथड है उसको हम टू फेज लॉकिंग बोलते हैं। देखो सीधी सी बात है, T1 को एक डेटा आइटम X चाहिए एंड T2 को भी एक डेटा आइटम X चाहिए। मुझे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना है कि मैं T1 और T2 में से किसको दूं। सिंपल बात है। तो सबसे आसान ये है कि मैं T1 को बोलती हूँ कि तुम लॉक कर लो X को, and then you do the operation, you unlock X, and then it can be given to T2, right? Then I'm going to give it to T2, then T2 can lock X, do the operations, and then unlock X, right? ये बहुत सिंपल मेथड है जिसको जो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन ये लॉकिंग और अनलॉकिंग इतनी इजी नहीं है। क्यों इजी नहीं है? क्योंकि मल्टीपल ट्रांजैक्शंस मल्टीपल डेटा आइटम्स को आपस में शेयर कर रहे हैं, और कब कौन किसको लॉक कर सकता है और कब कौन किसको अनलॉक कर सकता है उसके बारे में बात करनी जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल बात बताती हूँ कि T1 और T2 दोनों को दो डेटा आइटम चाहिए A और B। T1 ने क्या किया, T1 ने A को लॉक कर लिया, ठीक। नाउ T1 वांट्स B, इसकी रिक्वेस्ट है B की, और T2 ने क्या किया, B को लॉक कर लिया। नाउ इट वांट्स टू लॉक A। व्हाट हैपेंस? T1 is waiting for T2 to release B, T2 is waiting for T1 to release A। क्या हुआ? डेडलॉक हो गया। So this is a very simple problem that we'll come across when multiple transactions are sharing data items, right? So therefore we need to define some protocols through which the concurrency control can be enforced. So the first thing that we discuss normally is 2PL or two-phase locking protocol. Now locking is done for either reading or writing, and we lock a data item for a given transaction. What is unlocking? An operation which removes the permission from the data item. For example, when we write unlock X, the data item X is made available to all other transactions. Do not forget, lock and unlock are atomic operation. So when operating system on the behalf of database is locking or unlocking, it is an atomic operation. इसके बारे में हम याद रखेंगे कि ये हमेशा एटॉमिक ऑपरेशंस होते हैं। नाउ इन टू फेज लॉकिंग वी हैव टू लॉक मोड्स, वन इज शेयर्ड मोड, वन इज एक्सक्लूसिव मोड। दैट मींस अगर एक डेटा आइटम X है, उसको मल्टीपल ट्रांजैक्शंस रीड कर रहे हैं, सब रीड मोड में रीड कर रहे हैं, एवरीबॉडी इज रीडिंग इट, तो मल्टीपल रीड्स हो सकते हैं, यानी शेयर हो सकता है वो डेटा आइटम रीड मोड में, इसलिए इसको हम शेयर्ड लॉक बोलते हैं। जबकि जब ट्रांजैक्शन राइट करते हैं तो एक्चुअली या तो T1 राइट करेगा, या T2 राइट करेगा, या T3 राइट करेगा। तो दिस इज एन एक्सक्लूसिव मोड, क्योंकि राइट सब एक साथ नहीं कर सकते, एक बार में एक ही तो ट्रांजैक्शन राइट कर सकता है, रीड सब कर सकते हैं। तो शेयर्ड लॉक X, शेयर्ड मोड में multiple transactions can apply share lock on X for reading its value, but no write lock can be applied by any other transaction। और राइट मोड में केवल एक ही ट्रांजैक्शन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम लॉक कर सकता है, राइट? सो इसके बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से हम टू फेज लॉकिंग इंप्लीमेंट करते हैं। टू फेज लॉकिंग इंप्लीमेंट करने के लिए वी नीड टू सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। वन इज अ लॉक मैनेजर and there's a data structure that it keeps which is known as lock table. So lock manager is what? It is a software module, right? एक software module है lock manager जो manage करता है locks on data item and it keeps a data structure lock table. This data structure is normally implemented as a doubly linked list. एक डबली लिंक नॉर्मली हम लिस्ट को यूज करते हैं डेटा स्ट्रक्चर को, लॉक टेबल को इंप्लीमेंट करने के लिए। Now, lock manager क्यों यूज करता है लॉक टेबल को? Because it stores the identity of the transaction which locks a data item. The data item
the lock mode and the pointer to the next data item lock. So this is like transaction T1 has locked the data item X1 in read mode. And then next, so it will point to the next such node where transaction T1 might be locking a data item X2 in write mode, right? So this is the basic data structure of lock table, which we use to keep information about which data items have been logged by which transaction in what mode. तीन चीजें, ट्रांजेक्शन कौन सा है, कौन से डेटा आइटम को लॉक किया है, कौन से मोड में लॉक किया है. Now, database requires that all transactions be well formed. अब यहां मैथमेटिक्स है. A transaction is well formed if it must lock the data item before it reads or writes to it. So transaction well formed तभी है जब उसको जो भी डेटा आइटम यूज करना है पहले वो उसको लॉक करे और एक ऐसे किसी भी ट्रांजेक्शन को लॉक करने की कोशिश ना करे जो कि ऑलरेडी लॉक्ड है. ऐसे किसी ट्रांजेक्शन डेटा आइटम को अनलॉक करने की कोशिश नहीं करे जिसके ऊपर कोई लॉक नहीं है. सो दीज आर द बेसिस ऑफ essential components of two-phase locking protocol. Now let's see what are the two operations. So we have two operations. The first operation is locking operation. The second operation is unlocking operation. So if lock x is equal to 0, सबसे पहले वो चेक करेगा कि x के ऊपर कोई लॉक तो नहीं है. So if lock x is equal to 0, that means item is unlocked. Then lock x is equal to 1. That means it has to put a lock on the item. Else, देखो अगर lock x is equal to 0 है तो unlocked है. अगर वो lock x is equal to उसको कोई वैल्यू मिली, else begin, तो it will wait until that a data items another data item unlocks it. Another transaction unlocks it, and so this is busy waiting. ये बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम के बिजी वेटिंग जैसा है कि वो क्या करेगा, उसी डेटा आइटम जो लॉक्ड डेटा आइटम है उसके ऊपर वेट करता रहेगा यहाँ पे कि जब तक कि लॉक एक्स 0 नहीं हो जाता. until lock x becomes 0, it will wait, and the lock manager wakes up the transaction, right? So this is the basic locking operation. Now the following code performs the unlock operation. लॉक एक्स को केवल 0 करना है जाते जाते. इफ एनी अदर ट्रांजेक्शंस आर वेटिंग, अगर इसके ऊपर जैसे कि ये ट्रांजेक्शन यहाँ वेट कर रहा था, ये देखो ये वेट कर रहा था, अगर ये वेट कर रहा था तो इट विल वेक अप वन ऑफ द वेटिंग ट्रांजेक्शंस. ऑब्वियसली एक्स के लॉक के लिए वी वुड हैव अ वेट क्यू. किसी भी डेटा आइटम के ऊपर हमेशा वेट क्यू होगी जो नॉर्मली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होती है कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन T2 इसके लिए वेट कर रहा है, फिर T7 वेट कर रहा है, फिर T102 वेट कर रहा है. तो क्या होगा कि अगर X के लिए ये वेट कर रहा है और किसी ने अनलॉक किया तो सबसे पहले T2 जो है वो क्यू में से जाएगा और X के ऊपर लॉकिंग करेगा. बाकी सब पेशेंटली वेट करेंगे अपना टर्न आने के लिए, राइट? सो नॉर्मली इट इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू फीफो, लेकिन हो सकता है कि प्रायोरिटी लॉकिंग भी पॉसिबल है. तो प्रायोरिटी लॉकिंग जब होती है, अगर हमने प्रायोरिटी लॉकिंग करी तो दोबारा से स्टारवेशन होगा ट्रांजेक्शन में, क्योंकि एक ट्रांजेक्शन को कभी वो डेटा आइटम मिलेगा ही नहीं जिसके लिए वो वेट करता है. इसके बारे में हम कुछ प्रोटोकॉल्स बाद में पढ़ेंगे. अब रीड ऑपरेशन की बात करें. सो इफ लॉक एक्स इज इक्वल टू अनलॉक, देन बिगिन लॉक्स एक्स इज इक्वल टू रीड लॉक, एंड it makes a variable known as number of reads to be 1. And else अगर ऑलरेडी रीड लॉक्ड है तो वो नंबर ऑफ रीड्स को 1 से बढ़ा देगा. और अगर ऐसा नहीं है, अगर लॉक एक्स जो है वो राइट लॉक्ड है, देन इट विल बिगिन वेट. ठीक, यानी कि किसी डेटा आइटम एक्स को अगर रीड करना है किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन T4 को, तो T4 क्या करेगा कि सबसे पहले चेक करेगा कि उसके ऊपर रीड लॉक है क्या. अगर रीड कोई भी लॉक नहीं है तो उस पर एक रीड लॉक लगा देगा और नंबर ऑफ रीड्स को 1 कर देगा इनिशियल में. लेकिन उसको पता चला कि T7 ऑलरेडी इसको रीड कर रहा है, तो उसको कुछ भी नहीं करना है. उसको केवल नंबर ऑफ रीड्स जो है उसको 1 से बढ़ाना है और रीड करना चालू कर देना है. लेकिन उसे पता चला कि 7th ट्रांजेक्शन उसको राइट लॉक कर चुका है, एक T7 ट्रांजेक्शन, तो वो यहाँ पे वेट करेगा. वो रीड नहीं कर सकता जब तक कि ये 7th ट्रांजेक्शन उसको राइट नहीं कर दे, राइट? सो until lock x becomes unlocked and the lock manager wakes the transaction. So this is the read operation. Now write operation के लिए,
इफ लॉक एक्स इज इक्वल टू अनलॉक, तो वो डायरेक्टली, सॉरी इसमें, सो वो यहाँ पे डायरेक्टली, एक्सक्यूज मी, हेलो, हाँ आपने जी बोली, 15 दिन पहले ही हो गई, हाँ कर दिया था उन्होंने। नहीं नहीं, मेरी दीपक शर्मा जी से उसी दिन बात हो गई थी, मैं कॉलेज आई थी तो तभी दीपक शर्मा जी से बोल के गई थी कि सर से बात हो गई है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, आप शर्मा जी से बात कर लीजिए, दीपक शर्मा जी से। ओके, सो इफ इज अनलॉक, अगर अगर वो अच्छा, ये तो सेम कोड लिख दिया उन्होंने, नहीं नहीं, सो व्हाट इट विल डू इज, इफ लॉक एक्स इज इक्वल टू अनलॉक, तो वो यहाँ पे राइट लॉक कर देगा, सो इट विल बी राइट लॉक, एंड नंबर ऑफ रीड्स इज इक्वल टू 1 करने की जरूरत ही नहीं है, वो राइट लॉक अगर रहेगा। एल्स अगर लॉक एक्स जो है वो रीड लॉक्ड हुआ, अगर उसके ऊपर रीड लॉक्ड है, तो नंबर ऑफ रीड्स इज इक्वल टू रीड्स प्लस 1 करने की जरूरत है उसको, कि नंबर ऑफ रीड्स वो 1 कर सकता है, नहीं तो उसको वेट ही करना पड़ेगा। अगर रीडर्स हैं तो भी राइटिंग करने के लिए उसको इट हैज टू वेट, राइट। सो रीड्स एंड राइट्स के बारे में बाद में, अनलॉक जो है वो तो बहुत सिंपल है, कि जब भी किसी ट्रांजेक्शन ने अनलॉक किया, तो वो इट विल वेक अप वन ऑफ द ट्रांजेक्शंस इफ एनी इज वेटिंग इन द क्यू। एल्स अगर लॉक एक्स रीड लॉक्ड है, देन बिगिन नंबर ऑफ रीड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रीड्स माइनस 1। मतलब कि ये है कि हो सकता है ट्रांजेक्शन T1 T2 T3 सारे रीड कर रहे थे, ठीक है, ये सारे रीड कर रहे हैं डेटा आइटम एक्स को, और T3 वांट्स टू एग्जिट, तो व्हेन T3 एग्जिस्ट कुछ भी नहीं करना है, केवल नंबर ऑफ रीड्स को नंबर ऑफ रीड्स माइनस 1 करना है। और अगर ये लास्ट ट्रांजेक्शन है, तो इसको उसको फ्लैग करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ रीड 0 हो गए हैं, इसलिए कोई टी डैश ट्रांजेक्शन अगर इसको राइट करना चाहता है तो वो इसको लॉक कर सकता है, राइट। सो दिस इज वेरी सिंपल लॉजिक ऑफ टू फेज लॉकिंग। नाउ लॉक कन्वर्जन इज अलाउड। हो सकता है कि एक ट्रांजेक्शन T1 है जिसने कि रीड लॉक किया हो, रीड लॉक किया ट्रांजेक्शन को, एक पर्टिकुलर डेटाबेस ऑब्जेक्ट को, और अब वो उसको अपग्रेड करके राइट लॉक लगाना चाहता हो, लेकिन वो राइट लॉक तभी कर पाएगा जब दूसरा कोई ट्रांजेक्शन का रीड लॉक इसके ऊपर नहीं है, right? Then only it can convert read lock to write lock, else it will be forced to wait until all the transactions which are reading this data value together, they unlock it, basically. Lock downgrade, an existing write lock can be downgraded to a read lock when no transaction, कोई write lock है तो वो write lock को read lock में कभी भी convert कर सकता है, तब कोई problem नहीं है, उसको कुछ test करने की जरूरत नहीं है। Now, why it is called a two-phase locking protocol? This protocol is called two-phase locking protocol because it has two phases. In first phase, it locks the data item. In second phase, it unlocks the data item. So locking phase को हम growing phase बोलते हैं because the transaction applies locks on desired data items one at a time. Unlocking is a transaction unlocks its data items one at a time. Now, requirement is why it is two phase. For a transaction, these two phases must be mutually exclusive. That is, during locking phase, unlocking phase must not start, and during unlocking phase, locking phase must not start. चलो एक एग्जांपल देती हूँ। T1 एक है, उसने सपोज लॉक किया x को, राइट, and then it does whatever operations it wants to do with x, then it can lock y, है ना, और उसने कुछ कुछ ऑपरेशन किए, अब वो अनलॉक करके x को and then it tries to lock z, not possible। क्यों? क्योंकि ये लॉकिंग फेज है, ये लॉकिंग फेज है, लॉकिंग फेज अनलॉकिंग फेज के साथ में इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। This is why it is called locking phase, locking protocol. So what we can allow is transaction T1 locks x, y, z, whatever it wants to use, does some operation, and then unlock x, unlock y, and unlock z. So basically what I'm saying is locking and unlocking cannot intersect with each other. So here locking हो गई, उसके बाद unlocking हो गई, फिर locking हो गई, ये possible नहीं है। That is why it is called two phase locking protocol. एक phase में केवल locking होगी, दूसरे phase में unlocking होगी। So this is two-phase locking protocol algorithm. If you see, so this reads a value of y, read lock put करा इसने, then read किया data item को, then
अनलॉक कर दिया y को, देन राइट किया, रीड किया x को, एंड देन अनलॉक किया x को, राइट. सो दिस इज द बेसिक एग्जांपल. और इन लोगों ने उसको इंटरलीव करके अगर मैं एग्जीक्यूशन करूं, अगर मैं सीरियल एग्जीक्यूशन करूं, तो अगर इनिशियल वैल्यू x की 20 है और y की 30 है अगर इनिशियल वैल्यू, तो रिजल्ट t1 और t2 को हम सीरियली अगर एग्जीक्यूट करते हैं. सो इसने क्या किया, सबसे पहले y को रीड किया, फिर x को रीड किया. ठीक, x की वैल्यू यहाँ 20 रीड हो गई, 20 राइट कर, इट राइट्स, पुट द राइट लॉक. x की वैल्यू कितनी हो गई, x प्लस वाई, सो x इज इक्वल टू 50 हो गया. इसने x को 50 लिख दिया, तो यहाँ फाइनल वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 50 आ गई. एंड अब मैं t2 को एग्जीक्यूट करना चाहती हूँ. यहाँ पे इसने 50 वैल्यू रीड करी, 50 वैल्यू रीड करके इसने अनलॉक कर दिया x को, 50 वैल्यू है, राइट लॉक y की वैल्यू 30 पड़ी. ठीक, 30 पढ़ के 30 प्लस 50, y की वैल्यू हो गई 80, इसने वैल्यू को राइट कर दिया. सो t1 फॉलोड बाय t2 अगर मैंने किया तो मेरी x की वैल्यू 50 है और y की वैल्यू 80 है. यही एग्जीक्यूशन अगर मैं उल्टा करूंगी, t2 फॉलोड बाय t1 करूंगी, तो वैल्यू ऑफ x वुड बी 70 एंड वैल्यू ऑफ y वुड बी 50. नाउ ऑब्वियसली दोनों ट्रांजेक्शन को पहले अगर मैंने t1 ट्रांजेक्शन करके फिर t2 किया तो वैल्यू जो डेटाबेस की स्टेट है वो अलग है, और t2 करके t1 किया तो वैल्यू अलग है. इसका एक और एग्जांपल मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ, जिसमें इफ यू रिमेंबर इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी कि इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम जो होती है उसमें अगर फॉर एग्जांपल मेरे को एवरेज सैलरी निकालनी थी एम्प्लॉय की, और दूसरा ट्रांजेक्शन t1 इज फाइंडिंग आउट एवरेज सैलरी and t2 is doing what, t2 is calculating, giving 10% raise to salary to everybody. अब उस केस में अगर मैंने एक को पहले किया और एक को बाद में किया तो नेचुरली मेरा रिजल्ट अलग अलग आने वाला है ना. इसका मतलब इट इज इंपॉर्टेंट कि मैं किसको लॉकिंग पहले अलाउ करूं और किसको लॉकिंग बाद में अलाउ करूं, राइट. तो उसके बारे में बात करते हैं कि why does this happen, ये होता क्यों है. ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ. अब देखो टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल में अगर इंटरलीविंग करी तो क्या होगा. देखो इंटरलीविंग करने के बाद वो सीरियलाइजेबल होना चाहिए, क्योंकि वो या तो t1 t2 के इक्वल सीरियल शेड्यूल बनना चाहिए या t2 t1 के इक्विवेलेंट होना चाहिए, है ना. द फाइनल रिजल्ट शुड बी सेम, चाहे मैं इंटरलीविंग करूं चाहे मैं ना करूं, सीधी सी बात ये है. तो अब हम इंटरलीविंग करके देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारी x की और y की वैल्यू क्या थी इनिशियली, x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 30, है ना. सो x इज इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू 30. यहां से स्टार्ट करते हैं. इसने सबसे पहले रीड कर लिया y को, फिर अनलॉक कर दिया y को, इसने रीड लॉक लगाया, x को रीड किया, इसने अनलॉक कर दिया x को, इसने राइट लॉक लगाया y पे. ठीक, इसने y की वैल्यू चेंज कर दी, y की वैल्यू यहाँ पे हो गई और 50. ठीक, 30 प्लस 20 50 हो गई. इसने y की वैल्यू को राइट कर दिया, देन इसने वैल्यू को अनलॉक कर दिया, तो y की वैल्यू हो गई फाइनल 50. इसने x की वैल्यू को पढ़ा 50. ठीक, और वैल्यू जो x की वैल्यू जो करी थी वो कितनी कर दी 50. x की वैल्यू कितनी रीड करी थी इसने 20 वैल्यू रीड की थी, 20 प्लस 30 करी इसने, वैल्यू 50 हो गई, राइट. इसने x की वैल्यू को लिख दिया 50. सो फाइनली वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 50, और ये बेसिकली नॉन सीरियलाइजेबल है. क्यों, क्योंकि देखो यहाँ इसने अनलॉक कर दिया, है ना. अनलॉक करने के बाद में ट्रांजेक्शन t ने उसको अनलॉक किया. द पॉइंट इज अब ये यहाँ लॉकिंग हो रही है और लॉकिंग के बाद में अनलॉकिंग फिर हो रही है. ये देखो लॉकिंग के बाद अनलॉकिंग, अनलॉक मतलब कभी भी कोई भी लॉक कर रहा है, कभी भी कोई भी अनलॉक कर रहा है. दैट मीन्स द लॉकिंग एंड अनलॉकिंग फेज आर नॉट सीरियलाइज्ड एंड देयरफॉर द फाइनल रिजल्ट इज रॉन्ग. फाइनल रिजल्ट जो था वो या तो ये आना चाहिए था या ये आना चाहिए था, या तो t1 फॉलोड बाय t2 आना चाहिए था या t2 फॉलोड बाय t1 आना चाहिए था. लेकिन कुछ भलता ही रिजल्ट आ रहा है, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने लॉकिंग, ये देखो यहाँ ये अनलॉक हो गया, इसके बाद लॉकिंग हो गई, ये देखो ये इसके बाद लॉकिंग हो रही है, क्योंकि ये सीरियली एग्जीक्यूट हो रहा है ना. सॉरी सीरियली क्या मतलब सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट हो रहा है ना. सो टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट
इन टर्न की दोनों फेजेस जो हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने कंपलसरी हैं। अब जो टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल है उसको हम दो तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, एक है बेसिक, एक है कंजर्वेटिव। अब ये दोनों प्रोटोकॉल्स क्या कहते हैं? जो कंजर्वेटिव है वो कहता है इट प्रिवेंट्स द डेडलॉक बाय लॉकिंग ऑल डिजायर्ड डेटा आइटम बिफोर ट्रांजैक्शन बिगिंस एग्जीक्यूशन। अभी भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि T1 T2 अगर इसने x को लॉक कर लिया और y मांगा, और T2 ने y को लॉक कर लिया और x मांगा, तो T1 और T2 एक डेडलॉक में है, राइट? तो ये क्या कहता है कि अगर T1 को एग्जीक्यूट करने के लिए x और y दोनों चाहिए तो ये पहले इन दोनों को लॉक करे तभी ये स्टार्ट करे। सो इट प्रिवेंट्स डेडलॉक बाय लॉकिंग ऑल डिजायर्ड डेटा आइटम बिफोर ट्रांजैक्शन बिगिन एग्जीक्यूशन। सिमिलरली T2 को जब एग्जीक्यूट करना है तो वो x और y दोनों को लॉक करके बैठे तब वो स्टार्ट करे बिगिन ट्रांजैक्शन, उससे पहले वो नहीं करेगा, राइट? अब इससे प्रॉब्लम क्या है? इससे प्रॉब्लम ये है कि कोई भी ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन T1 है, उसे लेट्स से कि 6 डेटा आइटम चाहिए, इन 6 में से 5 तो उसको वो लॉक कर पा रहा है पर एक डेटा आइटम उसको नहीं मिल पा रहा है, तो वो अनड्यू वेट करता रहेगा, उसकी बहुत सारी अनड्यू वेटिंग होगी, यानी कि ट्रांजैक्शन के इनिशियलाइजेशन में या स्टार्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन में ही डिले हो जाएगा। अगर स्टार्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन में डिले होगा तो नेचुरली रिस्पॉन्स टाइम पुअर हो जाएगा डेटाबेस का, right? So this is the problem that you face in conservative two-phase locking protocol. Now, as compared to this, when you use a basic algorithm for two-phase locking, the basic says transaction can lock the data item incrementally, और इसकी वजह से this may cause deadlock, but हम उससे डील कर लेंगे। So basically, this is a pessimistic approach, this is an optimistic approach. So basic says कि ट्रांजेक्शन टी क्या कर सकता है? टी स्टार्ट करने के लिए इट विल लॉक एक्स, इट विल डू सम ऑपरेशन ऑन एक्स, देन इट कैन डिमांड फॉर वाई, इट कैन डिमांड फॉर, है ना? बट इस केस में वो नॉर्मली बोलेगा कि आप अनलॉकिंग जो है वो आप जब उसका अनलॉकिंग है वो सारी एक साथ करोगे, अनलॉक एक्स, अनलॉक वाई, सब एक साथ करोगे। सो इंक्रीमेंटल लॉक्स आप लगा सकते हो, ये वो परमिट करता है, जबकि कंजर्वेटिव कहता है कि नहीं, यू लॉक ऑल द डिजायर्ड डेटा आइटम्स एंड यू अनलॉक देम व्हेनेवर यू आर फिनिश्ड विद देम। सो T1 ने अगर x को लॉक किया, राइट, x को और y को लॉक करा, तो लॉक x लॉक y सबसे पहले होगा, फिर सारे ऑपरेशन होंगे, और सपोज x का काम हो गया तो वो अनलॉक x कर सकता है, फिर वो और ऑपरेशन कर सकता है, और फिर वो अनलॉक y कर सकता है। दिस इज अलाउड इन कंजर्वेटिव। जो इन दोनों से स्ट्रिक्टर वर्जन है, बेसिक एल्गोरिथम का स्ट्रिक्टर वर्जन है, वहां पे a more stricter version of basic algorithm says कि unlocking is performed after a transaction terminates, यानी कि आप लॉक इंक्रीमेंटली लगा सकते हो लेकिन अनलॉक इंक्रीमेंटली नहीं होगा। अनलॉक कब होगा? जब पूरा ट्रांजैक्शन एंटी हो गया है तब आप सारे अनलॉक करोगे, सीधी सी बात। तो तीनों में फर्क क्या है? कंजर्वेटिव कहता है कि आप सारे डिजायर्ड डेटा आइटम्स को लॉक कर लो एक साथ और आप इंक्रीमेंटली उनको अनलॉक करके छोड़ सकते हो। बेसिक कहता है कि आप इंक्रीमेंटली लॉक तो कर सकते हो, है ना, और अनलॉक भी इंक्रीमेंटली कर सकते हो, जबकि स्ट्रिक्ट वर्जन कहता है कि आप लॉकिंग जो है वो इंक्रीमेंटली करो लेकिन अनलॉकिंग जो है वो इंक्रीमेंटली नहीं होगी। अनलॉकिंग तभी होगी जब सारे ट्रांजैक्शन के सारे डेटा आइटम्स के ऊपर सारे ऑपरेशंस हो चुके हैं। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन टू टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क देम नाउ। Any questions? No questions? Okay, so if there are no questions, then we will stop the meeting now.